آج ہم اسی ٹاپک کو آگے تھوڑا سا لے کے بڑھیں گے، پتھر پر پتھر باقی۔ یسوع مسیح کو 6 عدالتوں میں پیش کیا گیا، ان میں سے 3 ایسی عدالتیں ہیں جو غیر قانونی ہیں۔ اب غیر قانونی عدالت جب بھی لگے گی وہ فیصلہ غلط کرے گی۔ اب اس سارے میسیج میں سے ہم نے سیکھنا یہ ہے کہ یسوع پر الزام ہے اور یسوع مسیح کا کوئی الزام ثابت بھی نہیں ہو رہا۔ ہم دیکھیں گے کہ یسوع مسیح پاک ذات ہے۔ آمین۔ نکال لیجئے متی کی انجیل 27واں باب چیپٹر نمبر 27۔ اے ساری رات لگے رہے نے، کوششیں کرتے رہے، لیکن یسوع مسیح میں سے کوئی جرم ثابت نہ ہوا۔ یہ کویسچن ہے 27ویں باب کی 22ویں آیت۔ کیا لکھا ہے؟ پیلاطوس نے ان سے کہا، پھر یسوع کو جو مسیح کہلاتا ہے کیا کروں؟ سوالیہ نشان ہے آگے۔ یہ ایک ایسا کویسچن ہے جو ہم نے اپنی زندگی میں کرنا ہے خود سے۔ یہ سوال کو سمجھنے کے لیے، اس کی ڈیپتھ میں جانے کے لیے ہمیں سیکھنا پڑے گا کہ یہ سوال کیوں پیلاطوس کر رہا ہے۔ سیکھنے کی بات ہے نا، مطلب پیلاطوس ایک کویسچن کر رہے ہیں یہودیاں دے نال کہ یہ جو یسوع مسیح ہے، جو مسیح کہلاتا ہے، اس کا میں کیا کروں؟ اس بات کو ہم نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ کیوں پیلاطوس یہ بات کر رہا ہے۔ اب یسوع مسیح ہیکل میں پیلاطوس کے پاس آنے سے پہلے یسوع مسیح کی 3 قانونی طور پر عدالت میں نہیں بلکہ غیر قانونی عدالتوں میں اس کا ٹرائل چل رہا ہے۔ سب سے پہلی عدالت اس کی حنا کے پاس اس کی عدالت لگی، دوسری عدالت اس کی قیافہ سردار کے پاس لگی۔ اب وہ دونوں غیر قانونی عدالتیں تھیں، وہ دونوں غیر قانونی عدالتوں سے نکل کر آ گئے ہیں صدر عدالت میں۔ یہ پورا ایک پروسیس ہے۔ یہ 2 پیشیاں غیر قانونی ہیں اور جب ان سے کچھ نہیں بن پڑا، اور یہ رات کے 1 بجے سے 3 بجے تک کا ٹائم ہے، تاریخ یہ بتاتی ہے اور بائبل کی ریسرچ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ رات کے 1 بجے یسوع مسیح باغ گتسمنی سے گرفتار ہوتے ہیں اور وہاں سے سیدھا لے جاتے ہیں حنا کے پاس۔ وہاں پر اس کی ایک پیشی ہوتی ہے اور وہاں پر پیشی ہونے کے بعد قیافہ سردار کے پاس، اور قیافہ سردار کے پاس سے جب بات نہیں بن پڑتی، وہ کچھ بھی ثابت نہیں کر پاتے، تو بات لے جاتے ہیں صدر عدالت تک۔ اب آپ نے کنسنٹریٹ کرنا ہے، وہاں پر الزام جو حنا کے پاس اور قیافہ کے پاس لگ رہا ہے، ان کا الزام یہ ہے کہ یسوع مسیح خود کو خدا کا بیٹا کہتا ہے۔ اب یہ یہودی سن نہیں تھے سکتے، وہ کہتے ہیں یہ کفر بکتا ہے۔ اب یہ دونوں پیشیاں رات کے 3 بجے لگیں، گو کہ اس کے پیچھے خدا کا ہی سارا منصوبہ کام کر رہا ہے، لیکن ہم اس پروسیس کو دیکھیں کہ پیلاطوس نے یہ کیوں کہہ دیا۔ انہوں نے یہ کام رات کے 1 بجے سے 5 بجے تک اپنا کمپلیٹ کرنا ہے کہ یسوع مسیح پر سزا ہو جائے، اسے سزائے موت کی خبر یا سزائے موت کی سزا میں مبتلا کر دیا جائے۔ اب یہ رات کا پروسیس ہے۔ 1 بجے سے 3 بجے تک 2 پیشیاں جب غیر قانونی ہوئی تو سیدھی انہوں نے ویٹ نہیں کیا، انہوں نے صبح 5 بجے صدر عدالت کا ٹائم اس وقت کا وہ کھلنی تھی، پیلاطوس کے پاس ہی کیوں انہیں جانا پڑا؟ یہ بات سیکھنے والی ہے کہ اور کہیں نہیں گے، کیونکہ رومی جو تھے یہ سزائے موت دے سکتے تھے، یہودی سزائے موت کسی کو نہیں دے سکتے تھے، یہ لا تھا، یہ قانونی طور پر سزائے موت نہیں تھے دے سکتے۔ ان کو سزا دلوانے کے لیے کسی بھی مجرم کو پکڑ کے جہاں پر
अदालत है सदर, वहां पर जाना पड़ता था। अब ये पिलातुस के पास क्यों लेकर जाएंगे? वजह, जब वहां पे जाते हैं तो फिर मुकदमे का दोबारा से आगाज। किसी दिन मैं आपको पढ़ाऊंगा कि जो रोमन लॉ था, मैं आपको सिखाऊंगा किसी दिन कि उनकी अदालत में कितने लोग बैठते थे, उनमें जुफ्त या ताक वर्ड क्यों यूज किया जाता था कोरन पूरा करने के लिए, उनकी अदालत के अंदर कितने कोरन बैठा हो या कितनी वोटिंग होती थी तो फिर सजाए मौत का ऐलान होता था। रोम का लॉ ये था कि अगर एक अदालत ने लिख दिया कि ये बंदा मासूम है और इसके मासूमियत की बिना पर इस पर इल्जाम है, इसको आजाद कर दिया जाए। ये एक ऐसा लॉ था जो बाद में तब्दील नहीं था हो सकता। लेकिन अगर किसी के बारे में ये जुर्म लिख दिया जाए कि इस शख्स पर सजाए मौत का हुक्म है, तो उसका 24 से 48 घंटे के अंदर फैसला तब्दील कर दिया जाता था। और इसका भी एक लंबा प्रोसेस था कि जजेस रोज़ा रखते थे। उन्होंने जजेस रोज़ा रखते सन। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ मसीह ਦੇ ਉੱਤੇ इल्ज़ाम लगाया गया ना, पहला तो उसने एवं नहीं किया। जजेस को यह था कि सुबह तो ईद फसा है, अगर हमने लिख दिया कि ये सजाए मौत का मुजरम है तो सुबह फैसला तब्दील नहीं हो सकता, हमने फसा खाना है। जजेस रोज़ा रखते थे फैसला लिखने के बाद कि अगर हम फैसला लिख देंगे कि यीशु मसीह सजाए मौत का मुजरम है तो हमने तो सुबह रोज़ा रखना नहीं, फैसला कैसे चेंज करेंगे? पहला तो उसका कहता है इस यीशु का जो मसीह कहलाता है मैं क्या करूं? एवं नहीं पहला तो उस कह रहा कि इस यीशु का मैं क्या करूं भाई, मैं की करा। हम भी आज इसी सवाल के नीचे हैं। हम अपनी तर्ज़े जिंदगी कैसे गुजार रहे हैं, इसका जवाब दिए बगैर आप मर भी नहीं सकते। या आप यीशु के हक में हैं या आप यीशु के, यीशु मसीह ने साफ कहा था जो मेरे साथ नहीं है वो मेरे खिलाफ है। इस सवाल का जवाब हमें देना पड़ेगा कि हम यीशु के साथ हैं या नहीं हैं। यह सवाल साड़ा पीछा करेगा और यह सवाल सिर्फ हम पर नहीं है, सारी दुनिया के लिए छोड़ा गया है। इस यीशु का जो मसीह कहलाता है मैं क्या करूं? यहूदिया का इलाका डायरेक्ट जो था ये रोम के ज़ेरे असर आता था और पिलातुस यहूदिया के अंदर गवर्नर है और रोमी गवर्नर वहां पर मौजूद हुआ करते थे। ईद फसा पर ये आया करते थे। वहां से हेरोदिस भी आया हुआ है और जितने भी यरूशलेम के आसपास के इलाके हैं जैसे बैतनिया, यहूदिया, गलील, ये सब कुछ, ये सारे जो एरियाज थे, छोटे छोटे शहर, इन्हें कंसिडर्ड किया जाता था कि ये कनेक्टेड यरूशलेम से ही हैं। इसलिए यीशु मसीह बैतनिया से हैकल में, यरूशलेम से फिर बैतनिया में, और ये सारे इलाके को यरूशलेम का हिस्सा ही गिना जाता था। और लोग बाहर अपने डेरे लगाते थे जहां पर गैर कौमों का हिस्सा था, वहां पर आकर लोग जमा हो जाते थे। और इसलिए ये पिलातुस के पास सुबह 5 बजे ले जाते हैं कि लोगों के उठने से पहले, लोगों के जागने से पहले हम सजाए मौत का आर्डर ले लें कि ये यीशु जो है ये जुर्म कर रहा है। लॉर्ड माउंटबेटन का किस किस ने पढ़ा हुआ है? लॉर्ड माउंटबेटन बर्तानिया का गवर्नर था। लॉर्ड माउंटबेटन, और ये गवर्नर तैनात क्यों किए जाते थे? ये तैनात इसलिए किए जाते थे जब बर्तानिया सारे बरे सगीर पर हुकूमत कर रहा था तो बरे सगीर का एक गवर्नर था जो हुक्मरान था। तो कहा जाता है कि ये लॉर्ड माउंटबेटन को मुख्तलिफ मुल्कों में भेजा गया ताकि ये अमन को कायम करे, पीस को कायम करे। और गवर्नर्स का काम ये होता था कि वो किसी भी तरीके से मुल्क के अंदर, शहरों के अंदर अमन को कायम करते थे, पीस को लेकर आते थे। अब रोमी गवर्नर जो है ये बेसिकली वहां पर ईद के दिनों में अमन कायम करने के लिए, पीस कायम करने के लिए
पैलातुस आया हुआ है। रसूलों का अकीदा किस किस को आता है? रसूलों ने भी अपने अकीदे में इहदा ही जिक्र किया है, और किसी का नहीं किया। और भी गवर्नर थे, हेरोदिस का नहीं जिक्र किया, लेकिन इसी का जिक्र के पैलातुस के अहद में दुख उठाया। अब ये ईद के दिनों में वहां पर मौजूद है, पैलातुस है और हुक्मरानी कर रहा है, और प्रॉब्लम लेकर ये दोनों पेशियों से, हन्ना और कायफा से लेकर सदर अदालत में, और वहां पर अदालत लगी है, और वो अदालत जो है वो पैलातुस के पास आ गई है कि ये अच्छा उत्थे जाके इल्जाम ही बदल जाएगा। जब हेरोदिस की मौत हुई ना, तो हमने सिर्फ यही, शायद हमें पता है जी, हेरोदिस मरने के बाद उसका बेटा हुक्मरान था। ओदे 3 बेटे सन हेरोदिस के, और ये तीनों डिफरेंट जगहों पर इन्होंने कह दिया कि हमें हुकूमत में से हिस्सा चाहिए, सल्तनत हमारे बाप की है, हमें उसका हिस्सा चाहिए या हमें उसमें तैनात किया जाए। इसका एक बेटा अरखलाउस था। जब ये पेशी चल रही है तो उस वक्त अरखलाउस जो है वो यहूदिया को लीड कर रहा था, दूसरा इंतपास था जो, और तीसरा फिलिपस था जिसे गैर आबाद इलाका कहा जाता है। ये तीनों बेटे थे उसके जो इस सारे एरिया को कवर कर रहे थे। यूसुफ और मरियम वापस आते हैं मिस्र की तरफ, तो अरखलाउस अपने बाप की जगह पर कायम था। एनीवे, तो जब वो नासरत चले जाते हैं गलील में, तो वहां एक बेटा इंतपास हुक्मरानी कर रहा था। यसू ने जो कहा था ना कि जाओ उस लुमड़ियों से कह दो, उस लुमड़ी का जो जिक्र है ना वो इंतपास के बारे में किया गया सी। हेरोदिस का बेटा था दूसरे नंबर पर। पहला बेटा कौन? अरखलाउस, दूसरा इंतपास, और तीसरा फिलिपुस। रोमन गवर्नमेंट सजाए मौत देने का इख्तियार रखती थी, इसलिए केस सारा उठा के किधर चला गया? उन्होंने कहा हमने यसू को सजाए मौत दिलवानी ही दिलवानी है। यहूदी लीडर भी हैं, लोग भी हैं। अब सुनिएगा, अब जरा और इंटरेस्टिंग हो जाएगी बात। चूंकि पैलातुस ये जानता था कि ये बड़ा मकबूल लीडर है, लोगों को इससे फायदा ही होता है, जिथे जाना मौजा करदा, रोटियां आंदियां ने, ये रोटियां खाते हैं, लोग इसे मकबूल लीडर मानते हैं। लेकिन लीडर इसके खिलाफ है। पैलातुस 100% कोशिश कर रहा है किसी तरीके से मैं इसे सजाए मौत ना दूं। पैलातुस 1% भी नहीं चाहता कि इनसे गुफ्तगू करे और इनकी गुफ्तगू को मान ले। अब जब वो इल्जाम हन्ना और कायफा के पास लगाया है, तो वहां कहते हैं कि यसू खुदा का बेटा अपने आप को कहता है, ये इस पे इल्जाम है। लेकिन जब ये पैलातुस के सामने आते हैं तो इल्जाम तब्दील हो जाता है। आप अंदाजा लगाएं, वहां पे इल्जाम का स्टेटस चेंज। क्या कहते हैं? लिखा है ये लोगों को उभारता है कि कैसर को जजिया ना दो। इल्जाम हो गया चेंज। हुण रोम दी हुकूमत दे अगे यह गल करनी, लोगों को ये उभारता है कैसर को जजिया नहीं देना आपने, लोग इसके कायल हो जाएंगे और ये कैसर के खिलाफ जंग करेगा, बड़ी पावरफुल जिंदगी गुजारेगा। अब ये सारा सिनेरियो चल रहा है। कानूनी सवाल पहली बारी पूछा, 27वें बाब की 11वीं आयत पे जरा आए। 11वीं आयत में लिखा है, यसू हाकिम के सामने खड़ा था और हाकिम ने उससे ये पूछा कि तू यहूदियों का बादशाह है? यसू ने उससे कहा तू खुद कहता है। और जब सरदार काहिन और बुजुर्ग उस पर इल्जाम लगा रहे थे, उसने कुछ जवाब इस पर पैलातुस ने उससे कहा, क्या तू नहीं सुनता ये तेरे खिलाफ गवाही, कितनी गवाहियां देते हैं? उसने एक बात का जवाब भी उसको जवाब, यहां तक कि हाकिम ने भी बहुत ताजुब किया। और हाकिम का दस्तूर था कि ईद पर लोगों की खातिर एक कैदी जिसे वो, अब ये पहला कानूनी सवाल रोमी लॉ के मुताबिक हो रहा है कि ये तुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं, तू अपने हक में कुछ कहना चाहता है? यहूदी जवाब नहीं दे रहे, बल्कि उसको एक
बात करते हैं पिलातुस को। यूहन्ना की अंजील जरा आ जाए, 18वां बाब है। ये तीनों अंजील के कॉन्टेक्स्ट में आपको समझनी पड़ेगी बात। और उसकी 28वीं आयत, बल्कि 27वीं से पढ़ लेते हैं। फिर वो यीशु को काइफा के पास से कला को ले गए और सुबह का वक्त था। किड़ा वक्त सी? सुबह सुबह दा। और वो खुद कला में ना गए ताकि नापाक ना हो बल्कि फसा खा सके। बस पिलातुस ने उनके पास बाहर आकर कहा, तुम इस आदमी पर क्या इल्जाम लगाते हो? ये कानूनी सवाल था। उन्होंने उसे जवाब में कहा, अगर ये बदकार ना होता तो हम इसे तेरे हवाले। पहली गल है भाई, यहूदी इन्ना आकड़ के गल क्यों पिलातुस ना कर रहे ने गवर्नर ना, ये भी अंडरस्टैंड करनी है बात। एक पास एक गवर्नर, दूसरे पास से यहूदी, और ये अकड़ के जवाब दे रहे हैं, अगर ये बदकार ना होता हम तेरे पास लेके आते। ये अकड़ में जवाब था। यहूदी आकड़ सकते सन उस दौर के अंदर, उनके पास ये अथॉरिटी थी। और क्यों थी? और पिलातुस क्यों डर डर के उनसे चुप रहा है? क्यों? अब गवर्नर को कहते हैं, अगर ये बदकार ना होता तो असी तेरे को लियाना ही नहीं सी, असी तो स्टीफना सारा भी संसार कर देना सी। हालांकि वो भी गैर कानूनी था, उन्होंने शरीयत के खिलाफ किया था। कानून ने ऑर्डर नहीं था किया कि तुम स्टीफनस को मारो, उन्होंने शरीयत के खिलाफ। अच्छा, अब पिलातुस भी बड़ा चलाक सी, इन्हां दी चलाकियां समझदा सी। कहंदा तुहाडा कोई मजहबी जिहा मामला है, तुसी इंज करो, इनू लै जाओ, अपनी शरीयत के मुताबिक ही जो मर्जी कर लो ਇਹਦੇ ਨਾਲ, मेरी जान छड्डो किसी तरीके ना। अब क्यों उनसे जान छुड़वाना चाह रहा है? समझते हैं इसको भी। असल में हो क्या रहा था? स्टीफनस वाला काम भी तो गैर कानूनी कीता सी ना। पहला तो उसने उससे कहा, इसे ले जाकर तुम ही अपनी शरीयत के मुआफिक इसका फैसला। यहूदियों ने उससे कहा, हमें रवा नहीं कि किसी को जान से मारे, क्योंकि रोमी गवर्नमेंट ही सजाए मौत दे सकती थी, वो ये जानते थे। ये इसलिए हुआ यीशु की वो बात पूरी हो जो उसने अपनी मौत की तारीख की तरफ इशारा करके कही। उस तरीक की यीशु मसीह ने वो गल की थी कि जब इब्ने आदम को ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा, जब ऊंचे पे चढ़ाए जाने की बात आई तो उन्हें पता था ये तो रोमी गवर्नमेंट की अथॉरिटी की बात है। अब यहूदियों के माइंड में ये बात बैठ गई थी कि उसने ये बात कही थी कि जब ऊंचे पर इब्ने आदम को चढ़ाया जाएगा। तो ये अपनी बात को लेके सदर अदालत में सीधा चले गए हैं पिलातुस के पास और उससे चाहते हैं इसे सजाए मौत। और वो ना आकड़ के गल पे कर देने, कोई डर के गल नहीं कर रहे। पिलातुस का डरना बनता भी था। यीशु मसीह का केस चल रहा है, ये हैकल में गए नहीं, लेकिन यीशु मसीह और पिलातुस अंदर है। पिलातुस उनके पास जा रहा है, यानी गवर्नर लोगों के पास जा रहा है। अब अंदाजा लगाएं कि यहूदी अंदर नहीं गए, पिलातुस को अपनी अदालत का जज उठता है कदी मुजरम की खातर, भावें मुलसा में या मुजरम में। गवर्नर उस वक्त जजमेंट के तौर पे जज कर रहा है। पिलातुस को जब कोई खतरा नजर नहीं आया तो उसने किया क्या है? बाहर जा कहता है, इसे अपनी यहूदियों की शरीयत के मुताबिक आप, मुझे इसमें बगावत की बू नजर नहीं आ रही। दुनिया में बड़े लीडर आए, बड़े बड़े आला लीडर आए, बड़ी बड़ी डिग्रियों वाले लीडर आए, दुनिया के अंदर मोटिवेशनल स्पीकर आए, लोगों ने उनसे सीखा भी, लेकिन उनमें भी कहीं ना कहीं अकड़ या कहीं ना कहीं बगावत आ गई थी। दुनिया में एक ही लीडर है जिसके अंदर बगावत की बू नहीं आती, और वो सिर्फ यीशु मसीह नासरी है। उसके अंदर कभी बगावत की बू नहीं आएगी, किरदार में नहीं आएगी, क्योंकि वो खुदा का बेटा हमारा बड़ा भाई यीशु नासरी है। हालेलुया। बगावत की बू उसमें से। अब रोमी ट्रायल चल रहा है और इसमें कोई गलती नहीं आ रही। बाहर कहते हैं, आई फाइंड नॉट गिल्टी इन हिम, मैं कोई गलती इसमें नहीं देख रहा। भाई तुसी जड़ा इल्जाम लगा रहे हो वो भी यदि अंदर नहीं, ये तो मासूम है और रास्तबाज है। पहला तो उस चाहता था ना फौरन मैं रहा कर दा, लेकिन जिम्मेदारी सी बहुत बड़ी
اور جج کی ذمہ داری ہوتی ہے جب وہ کسی مجرم کو چھوڑتا ہے تو اسے پروٹیکٹ بھی کرتا ہے, ساتھ لکھ کے بھی دیتا ہے کہ کوئی انو نہ چھیڑے. وہ اپنی سٹیٹمنٹ میں لکھتا ہے نیچے اس کی پروٹیکشن بھی. اب جج نے کیا کیا, گورنر کہہ رہا ہے کہ بھائی کچھ نہیں. پیلاطوس 10 سال وہاں پہ حکومت کی ہے. میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی کڑی اور یہودا اسکریوتی کی کڑی آپس میں کیسے کریکٹرسٹک طریقے سے ملے گی. انہیں یسوع نو پھڑوایا, انہیں حکم جاری کیتا, لیکن کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے یسوع مسیح کی میں بخشش یا اس سزا سے کروا سکوں کہ یسوع مسیح یہاں سے بری ہو جائے. اچھا گلا کر دے نا, انہاں کیا اسے کیسر کو جزیہ دینا روا نہیں. نے تو گلیل میں بھی, اچھا جن جی گلیل دا نہ آیا نا, پہلا تو اس نے آکھا جان چھوٹ گئی. پہلا تو اس نے سمجھا میری جان چھوٹ گئی, کیس پہ جو سیدھا ہیرودیس دے کول, ہیرودیس انتپاس کے پاس. آکھا میری تے جان چھٹی, میں تے ادے ہون تو بری ہواں. سیدھا کیس ہیرودیس کو. ہن ہیرودیس سامنے پھر کیس دہرایا گیا. اس نے قیافہ کے گھر میں یہ کیا, اس نے حنا کے گھر میں یہ کیا, اس نے صدر عدالت میں یہ کیا, اس پہ یہ الزام ہے, اس پہ یہ الزام ہے. سارے الزام سن کے بائبل کہندی ہے یسوع نے ہیرودیس کو کچھ جواب, انہیں آکھیا نے کی کرنا جڑا جواب ہی نہیں اگوں دیندا. انہیں کیڑی فوج تیار کرنی ہے جیڑی کیسر اگسطس دے خلاف اٹھے تے جنگ لڑے تے روم تو انہاں نوں آزادی دلوا دے. سوچنے کی بات ہے نا. انہیں بھی آکھیا میں اس میں کوئی جرم, انہیں آکھیا واپس لے جاؤ. یہ اب 5 سے 6 بجے کے درمیان انہوں نے ٹرائل کمپلیٹ کرنا ہی کرنا ہے. صبح 5 تو 6, کیونکہ بلڈنگیں نزدیک ہی تھیں جہاں پہ ہیرودیس, کیونکہ یہودی آتے تھے وہاں پر عید منانے, تو گلیل اور یہودیہ اور یہ سارے اس عمارتوں کے اندر موجود تھے جہاں پر عدالت لگی, اور یہ نزدیک ہی تھے. میرا خیال ہے پہلا تو اس نے 5 منٹ دی عدالت لائی ہونی ہے, تو ایتھے بھی 5-10 منٹ ہی لگے ہونے نے لے کے یسوع مسیح نو. پہلا تو اس پھر وقت انہیں آکھا میں جان چھڑائیے. انہوں ایک بہانہ مل گیا, کہتا ہے ہاں یہ ہیرودیس کے پاس بھی گیا ہے لیکن اس نے بھی اس میں کوئی گناہ نہیں پایا. اب سنیے گا غور سے, یہودیوں سے یہ ڈر کیوں رہا تھا اور کیوں اپنی جان چھڑوا رہا تھا, اور کہتا تھا یسوع مسیح کو. یہ جب یسوع مسیح کو لے کے آئے نا, تو اس سے پہلے یہودیوں نے 3 اس کو جگہ پہ مات دی ہوئی تھی. یہودیوں نے اس نے کیا گیا, جیسے ہی 26 قبل از مسیح میں اس کو گورنرشپ ملتی ہے, یہ اپنی پاور شو کرنے کے لیے جھنڈا بنواتا ہے روم کا, اس کے اوپر ایک باز کی تصویر بناتا ہے, اور اس سے اوپر جو ہے وہ روم کے بادشاہ کی تصویر بنوا دیتا ہے. کرتا کیا ہے, کہتا ہے پورے ملک میں جھنڈا لے کے نا میری پاور شو کی جائے. اور یہودیوں نے بابل کی اسیری کے بعد کبھی بت پرستی نہیں تھی کی. بابل کی اسیری کے بعد 70 سال کی اسیری کے بعد یہودیوں نے بت پرستی نہیں تھی کی. اس سے پہلے انہوں نے بہت بت پرستی کی تھی, اور یہ اس بات کے قائل تھے کہ ہم اب تصویر کی بھی پوجا نہیں کریں گے. اب ہوا یہ کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتار. انہاں کیا اسی نہیں لانا, میں گورنر ہوں, میں اس سے تصویر نہیں ہٹاؤں گا, نہ ہی ایگل کی اور نہ ہی روم کے بادشاہ کی. انہوں نے کہا یہ بت پرستی ہے. یہودی اس ایریے میں چلے گئے کیسریا کے اندر, کیونکہ یہ بیسیکلی کیسریا میں حکومت کر رہا تھا, اور کیسریا سے یہ آیا ہوا تھا یروشلم کے اندر. ہوا یہ کہ انہوں نے یہودیوں کو گھیر لیا چاروں طرف سے, گورنر نے اور اس کی فوج نے, اور پھر یہودیوں سے کہا تم اپنے اس طریقے سے باز آؤ, اگر تم باز نہ آئے ہم نے تمہاری گردن تمہارے تن سے جدا کر دینی ہے. یہودیوں نے کیا کیا, انہوں نے اپنی قمیضوں کو تھوڑا سا پرے کیا, گردنیں آگے کر دی. انہوں نے کہا بت پرستی نہیں چلے گی, ہماری گردنیں تن سے جدا کر دو. پھنس گیا.
अगर मैं यहूदियों को मार देना नमाल साहब मेरे ते लग जाएगा। उन्हें आखा ठीक है। और इस बात से पिलातुस को हार माननी पड़ी, उसने हथियार डाल दिए और कहा कि मैं अब रोम के झंडे पर बादशाह या ईगल की या कोई तस्वीर नहीं बनाऊंगा। इससे जान छूटी। जैसे अंग्रेज यहाँ पे आते हैं वो हमारे कल्चर का एहतराम करते हैं ना, जेडे कल्चर ਨੂੰ समझते होंगे ने वो साडे कल्चर का एहतराम करते हैं। अब इसको चाहिए ये था गवर्नर को कि मैं रोम का गवर्नर हूँ, यहूदियों के मैंने कुछ मजहबी मामलात को उनको देखना है और उनको मैंने हैंडल करना है और उनका एहतराम करना है। ये उस एहतराम की हदूद से बाहर आ गया था। उन्हें फिर हटवा ली तस्वीर भी। कहते हैं तो भाई कट्ठे हो के आ जाते ने और आ कहते साड़ियाँ गर्दनां ही वढ़ दो। अगर मैं यसू नूं सजा ना दी है ना मेरे खिलाफ फिर एप्लीकेशन दे देनी है। हुण मैं करा ते करा की, फस गया ना डाडा। अगली गल इसने किया क्या, इसने कहा कि यहाँ का जो पानी का निज़ाम है ना ये यहूदियों का ठीक नहीं है, मैं इनके लिए कुछ करता हूँ। इसने हैकल के खजाने में से पैसे निकाले। यहूदियों ने फिर शोर पा दिता। उन्होंने कहा साड़ी पाक तरीन जगह तो साडे खजाने चों इन्हें चोरी की है, अदे खिलाफ एप्लीकेशन दो जाके। फिर उन्हें फिर एप्लीकेशन दे दी। वो बादशाह कहता तेरिया दो एप्लीकेशन आ गए, तू बंदा क्यों नहीं बनता, हुण तू यहूदियों के खिलाफ कुछ नहीं करना। वो ना पहले बेचारा डरिया सी, मेरे ते 2-3 एप्लीकेशन तो पहले ही ने। अच्छा तीजा होर इन्होंने एक काम कर दिता, इन्हें एक शील्ड होर बनवा ली। को थोड़ा अरसा गुजरिया ना, को 6 महीने, उन्होंने एक होर तस्वीर बना ली। तस्वीर बना के शील्ड बना के ना उत्ते कैसर औगस्तस की तस्वीर बना दी। उन्हें कहा सी पहले क्या सी कि इन्हें रोम के बादशाह की फोटो बनाई। उन्हें कहा झंडे तो मना किया सी, शील्ड तो मना तो नहीं सी ना किया, शील्ड तो भी लाई जाए। यहूदियों ने शोर पाया, पिलातुस नूं फिर हार मननी पई। उन्हें बकायदा लैटर हैड ऑफिस लिख दिता, जिथे दा गवर्नर जिन्हें पढ़ाया सी ना, पॉइंट किया सी, उन्होंने उत्थे लैटर लिख दिता यहूदियों ने कि भाई जी साडे शहर साडे इलाके दे विच शील्ड ते कोई कैसर औगस्तस की तस्वीर नहीं होनी चाहिए, इनू बंद किया जाए। ठीक है। पिलातुस बार बार यीशु को बचाना चाहता है बीइंग ए जज, और आज भी सुप्रीम कोर्ट की 99.9% आज की दुनिया में भी कोशिश होती है कि मुजरम को कोई रिलीफ मिल जाए। हाई कोर्ट की भी कोशिश होती है कि मुजरम को रिलीफ मिले, कहीं ना कहीं इसकी राह निकले कि ये बच जाए। अब वो भी ऐसे जज बचाना चाह रहा है। उन्होंने घोर नवा काम कर दिता। यहूदियों ने क्या, अगर तूने सजा ना दी तू भी कैसर का दुश्मन ही है। अच्छा ऐसे असना दे विच ना कोशिश करता है कि बचे, ओदी बीवी उन्हें बुला लेंदी है। हुण बहस चल रही है, ऐसे बहस विच ही ना हुण गो के खुदा डिवाइन तरीके से काम करता है। ओदी बीवी ने कहा कि तू ऐसे यीशु दे बारे विच कुछ ना कर, मैं राती हाब विच इस बंदे की निस्बत बहुत दुख उठाया ही, ते हुण ए जिहड़ा टाइम पीरियड अपनी बीवी दे नाल गुजार रहे ना गुफ्तगू च, उन्ने चिरां नूं लोग उठ गए इकट्ठा। पिलातुस ने किया था, बुलवाया पिलातुस ने था कि लोकी ते मेरी हेल्प करनगे ना कि भाई जी यीशु को सलीब नहीं देनी, इनू छड़ दिता जाए। अब बराबर वाली बात भी आगे खुलेगी जाके। अब कोशिश उसकी ये है कि लोग आगे हैं, उधरों लोग आए ने, उधरों बेगम साहबा ने ऑर्डर जारी कर दिया, गवर्नर साहब जरा प्लीज कम टू मी, आई वांट टू से समथिंग। हैं अच्छा हुण ऑर्डर बीवी दा सी भाई जी, वो तो गवर्नरां दी गवर्नर सी। बुलाण वाला भी कहता है सर जी आ गया जे पिछों मैसेज, ऑर्डर आ गया जे। हम ये सीख रहे हैं कि कैसे पिलातुस बचा रहा है। हुण क्या होया, पिलातुस अपनी बीवी दे कोल, पिलातुस ने लोगों को जमा किया, लोगों की हेल्प लेना चाह रहा है कि किसी तरीके से यीशु को यहां पे सजाए मौत का ऑर्डर ना दिया जाए। उधरों बेगम साहिबा का ऑर्डर सी, उन्हें कहा वो गल तो ठीक कर रही सी, वो कहते कि मैं राती हाफ च इस बंदे की सबब ना बड़ा दुख उठाया, तू इस रास्तबाज के अपना कोई ताल्लुक ना रख, तू बरी हो। ऐसे टाइम दे विच ही 15, 20, 25, 30 मिनट दे विच
ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਸੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਭਾਰਨਾ, ਲਿਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਭਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾइंड 'ਚ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ बीवी ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਕਿ जब मैं जाऊंगा, जब मैं कहूँगा हाँ भाई दसो हुण की करना चाहिए, तो लोग कहेंगे भाई यस्सू रोटियां खवांदा है, मोजे करदा है, शिफावां देता है, ये तो बड़े काम करता है, इसको छोड़ दिया जाए तो मैं छड़ देवांगा। जदों अगे आया उन्हें आके आख्या अब मैं इस यस्सू का क्या करूं। लोगों ने की किया, इसे सलीब दो। उन्हें आख्या अगर मैं इहनूं कोड़े लगवा दा ते मार पटवा के छड़ देना वा। उन्हें कहा ना 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 ना, यह काम नहीं करना, इनू सजा देनी देनी है। फिर उन्हें एक और ऑप्शन दी, उन्हें आख्या ठहर जाओ, अगर मैं ताड़ी, अब उसने बराबा का नाम ऐसे नहीं था ले दिया क्योंकि यहूदी किसी नकम्मे नखट्टू दुश्मन ऐसे को जो जालिम हो, जिसका किरदार ठीक नहीं है, उन्हें आख्या एक दुश्मन इंज दा इत्थे बन्निया आए सी जिहदे तो यहूदी मनन नहीं लगे कि उन्होंने छड़ दे। मैं सवाल ही इंज दा करना कि बराबा नूं कहना कि उन्होंने छड़ दा, तो यहूदियों ने की किया, हाँ तुसी वेखो जालम नूं बर्दाश्त कर लिया, मासूमियत नूं बर्दाश्त, कहते हैं बराबा को छोड़ दो और यस्सू को सलीब दो। पहला तो उस कहता है मैं इस यस्सू का क्या करूं। उसने कोड़े मरवाए भी। कोड़े मारने का मकसद ये होता था कि कोई सलीबी मौत तक ना जाए, क्योंकि कोड़ा जब लगता था, जो पैशन ऑफ क्राइस्ट के अंदर हम देखते हैं, वो 100% उन्होंने ठीक स्केच लिया है, वो वैसे ही मारते थे, हाथ ऊपर की तरफ बांधते थे और कोड़ा इधर से घूम के पेट के दूसरी तरफ तक आता था और वो साथ गोश्त भी उतार के ले जाता था। उन्होंने ठीक इस सेंस में वो सीन को लिया है। उन्हें क्या शायद यस्सू कोड़े खा के ना थोड़ी बहुत होश रवेगी ते ए छड़ देणगे इहनूं। उन्हां कहा ना, कोड़े भी खा लेने फिर भी सलीब एवं नहीं सी। यस्सू मसीह ने कह दिया इस पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा। ये सारा सिनेरियो पिलातुस, हेरोदिस, हन्ना, काइफा, सदर अदालत, आखिरकार उसने हाथों को धोया। रिसर्च हमें ये कहती है कि पूरी जिंदगी उसको फिर ये बीमारी लग गई और वो सारी जिंदगी हाथों को ऐसे ऐसे ही करता रहा। आखिर 10 साल हुकूमत करने के बाद 26 कबल मसीह से 36 कबल मसीह के बाद जिस तरह यहूदा अस्कर यूती ने मसीह को पकड़वाया, इसने अपना ऑर्डर जारी किया, उसने थैली में से पैसे निकाले, इसने खजाने में से पैसे निकाले, उसने खुदकशी की और तारीख यूसिफस तारीख दान ये कहता है फिर इसने 10 साल के बाद इसको इतना पछतावा हुआ कि इसने भी खुदकशी कर ली। ये इस सवाल की बैकग्राउंड है कि मैं उस यस्सू का क्या करूं। और उसने कहा मैं इस रास्तबाज के खून से बरी हूं। भाई नहीं तू बरी हो सकता क्योंकि तूने हुक्म जारी किया है। बरी वही होगा जो यस्सू मसीह का इकरार करेगा कि यस्सू ही खुदा का बेटा है। ये इकरार करना पड़ेगा, फिर तेरे लिए मुआफी है। मेरे सामने भी एक क्वेश्चन आ गया कि जो यस्सू सलीब पर मुआ है, जो यस्सू कब्र में उतारा गया है, मैं उसका क्या करूं। जो यस्सू मुर्दों में से जी उठा है, जो यस्सू तख्त नशी है, जो यस्सू आज भी मेरे साथ खड़ा है, जो यस्सू मेरी जिंदगी में मौजज़ात करता है, जो यस्सू मेरी फिक्रें करता है, उसका मैं क्या करूं। और उसका एक ही सबसे बड़ा जवाब है कि यस्सू को अपनी जिंदगी दे दे, वो तेरी जिंदगी में आ जाएगा और तेरी बिगड़ी हुई जिंदगी को निखार के उठा खड़ा करेगा। That is Jesus Christ। मैं उस यस्सू का क्या करूं। हाँ, आप सिंपल भी कह सकते हैं, मैं अपना दिल तुझे देता हूं, मैं अपनी रूह, अपनी जान, अपनी बदन से तेरे से प्यार करता हूं। मैं करूंगा, मैं आज के बाद जो मेरी जिंदगी में काम थे वो नहीं करूंगा। आज तेरे लिए मैं अपने आप को वक्फ करती हूं। या
میں اس یسوع کا جو مسیح کہلاتا ہے. وہ گورنر امن قائم کرنا آیا سی پر امن قائم ہویا نہیں. دنیا میں بڑے لارڈ ماؤنٹ بینٹن اور بڑے بڑے گورنرز آئے, حکومتیں آئیں, کبھی کسی کے آنے سے امن نہیں ہوا. ایک ہی امن کا بادشاہ, صلح کا بادشاہ, ہی از پرنس آف پیس اینڈ دیٹ از جیسس کرائسٹ. ہیلیلویا. یسوع مسیح امن کا بادشاہ ہے. اور کوشش پہلا تو اس نے بڑی کی تھی لیکن انجام ٹھیک. ہنا کے بعد قیافہ کے بعد صدر عدالت. ان تینوں عدالتوں میں سے یسوع پر کوئی جرم ثابت. بات گھومتی گھومتی چلی گئی چوتھی عدالت جا کے لگی پیلاطس کے پاس. پیلاطس کہتا ہے کہ میں اس میں کوئی جرم. وہاں سے بات چلی تو سیدھی گلیل میں ہیرودیس بادشاہ کے پاس, یعنی انتپاس کے پاس. وہ بھی کہتا ہے میں اس معصومیت اور اس کے اندر کوئی جرم نہیں دیکھتا. پانچویں عدالت میں بھی یسوع پر کوئی جرم ثابت نہیں ہوا. وہاں سے بات چلتی چلتی پھر پیلاطس کے پاس کہتا ہے میں اس راست باز میں کوئی گناہ. دنیا کی کوئی عدالت میں یسوع کا جرم ثابت نہیں ہوا. اس لیے اس نے کہا تھا کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے؟ یہ ہمارا یسوع پاک ذات ہے, اس کی ذات کے اندر پاکیزگی ہے. اس یسوع کو ہم مانتے اور جانتے اور منادی کرتے ہیں. ہیلیلویا. اس یسوع کا جو مسیح کہلاتا ہے, میں کیا کروں؟